صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ الاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمۃ الزہراء اللہم صلی اللہ محمد وعلی تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ مومنین اکرام، دعا ہے کہ خالق آل محمد ہماری آج کی اس مجلس، ہماری آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جیسا کہ ہم ہمیشہ اپنی مجالس میں دعا کرتے ہیں، ولایت علی 313 یہ چینل جو آج کے اس دور میں، مشکل ترین دور میں، پرآشوب زمانے میں بہتر سے بہتر طریقے تک مومنین تک فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد کی رسائی کا وسیلہ بنا ہوا ہے۔ مولا اس چینل کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس چینل کے روح اللہ جناب سید انتصار شاہ صاحب، ان کے خانوادہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں ہماری اس عبادت کو خوشنودی سیدہ سلام اللہ علیہا میں ہمیشہ کے لیے شمار فرمائے، اور بی بی کی خوشنودی اس عبادت کے لیے خصوصی ہمیں حاصل، اور ناصرین صاحب العصر میں میرا مالک ہمارا شمار فرمائے۔ جیسا کہ آپ تمام مومنین جانتے ہیں کہ یکم محرم کا چاند طلوع ہو چکا، اور پوری کائنات میں رہنے والے امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے، امام حسین سے عشق کرنے والے لوگ یہ بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جو ہی افق پہ محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو چاند محرم کا دیکھتے ہی جو سب سے پہلا خیال ذہن میں آتا ہے وہ خیال مظلومیت حضرت امام حسین ابن علی۔ ہر چاند، ہر اسلامی مہینہ اپنے اندر بے شمار واقعات رکھتا ہے، ہر اسلامی مہینے کے اندر بہت سے واقعات، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی ایک واقعہ کسی ایک چاند کو، کسی ایک مہینے کو مکمل اپنے ساتھ منسوب کر لے۔ لیکن واحد محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں 1400 سال پہلے 61 ہجری میں 10 محرم کو ایک سانحہ، ایک واقعہ رونما ہوا، لیکن قیامت تک کے لیے پورے محرم الحرام کو منسوب کر دیا گیا یاد حضرت امام حسین کے ساتھ۔ محرم کا چاند جہاں زمانے کو مظلومیت حسین ابن علی کا درس دیتا ہے، وہاں آج بھی امام حسین علیہ السلام کا یہ چاند استعارہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو پوری دنیا میں حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، جو ظالم کے سامنے سینہ سپر ہونا چاہتے ہیں، جو مظلوم کے حق میں آواز اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ چاند ان تمام کے لیے پیغام ہے۔ یہ چاند پیغام ہے آزادی انسانیت کا، یہ چاند پیغام ہے معراج انسانیت کا، یہ چاند پیغام ہے عروج بندگی کا، یہ چاند پیغام ہے تحفظ پروردگار کا، یہ چاند پیغام ہے محافظت رسالت کا، یہ چاند پیغام ہے کہ آج بھی آدم کو علیہ السلام کہا جا رہا ہے تو اس چاند میں ہونے والے اس واقعے کی وجہ سے۔ یہ چاند آج بھی پیغام دے رہا ہے کہ آج بھی دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اسی حسین کی وجہ سے۔ اگر آج بھی مسجدوں میں نماز ادا ہو رہی ہے تو اس حسین ابن علی کی وجہ سے۔ اگر آج بھی مسلمان اسلام پہ عمل پیرا ہیں تو اس اسلام کا اکیلا اور واحد محسن حسین ابن علی ہے۔ بے شک۔ اب امام حسین علیہ السلام کی یاد جو ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو بہت سے سوالات گردش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے دور میں یہ سوالات اتنی تیزی سے گردش کرتے ہیں کہ یہ بہت سے لوگوں کو حق کے رستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوالات یہ ہوتے ہیں کہ آیا امام حسین کا غم کیسے منایا جائے، امام حسین علیہ السلام سے محبت تقاضا کیا کرتی ہے، کیا ماتم کرنا چاہیے، کیا عزاداری ہمارے لیے کیا فائدے رکھتی ہے۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کی نسبت کہیں نہ کہیں حضرت امام حسین ابن علی سے ہے۔ تو لہٰذا ان تمام نسبتوں کو سمجھنے کے لیے، ان تمام نسبتوں کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جن کے ساتھ یہ ساری باتیں منسوب ہیں وہ ذات خود کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ عزاداری ہے حسین ابن علی کی، ماتم ہے حسین ابن علی کا،
मजालस है हुसैन इब्न अली, जलूस है हुसैन इब्न अली की, तज़किरा है हुसैन इब्न अली का, मजलिस है हुसैन इब्न अली की, नोहा है, मरसिया है, ये तमाम की तमाम जितनी चीजें हैं ये मरबूत हैं हजरत इमाम हुसैन इब्न अली से। तो पहले देखना पड़ेगा कि आखिर जिस जात के साथ ये सारी चीजें मंसूब हैं वो जात अपनी जात में है क्या, उस जात की आगही क्या है, उस जात की मारिफत क्या है। तो साहिबान अक्ल दानिश, जब हम इस जात की मारिफत और इस जात की पहचान के लिए कुरान के दरवाजे पे जाते हैं, जब हम इस जात की पहचान के लिए रसूल के दरवाजे पे जाते हैं, तो मारिफत के समुंदर हैं जो जारी हो जाते हैं। खुदावंद मुतआल ने जब हजरत आदम को जमीन पे खिलाफत के लिए मुंतखब किया तो ये खलीफतुल्लाह था। हजरत आदम पहला जानशीन था जिसे जमीन पे उतारा गया। उसके बाद खुदा ने हजरत आदम के बाद एक लामहदूद सिलसिला शुरू किया, एक ऐसा सिलसिला शुरू किया इंसानियत की हदायत के लिए कि एक के बाद एक नबी आया, एक के बाद एक नबी आया, और हर नबी को दूसरे नबी से बरतरी दी, हर नबी को दूसरे नबी से फजीलत दी, हर नबी के हदूद को बढ़ाया, हर नबी के इख्तियारात को बढ़ाया। रसूल भेजे गए, मुरसल भेजे गए, किताबें उतारी गई, सहीफे भेजे गए, अजाब नाजल किए गए, खुशखबरियां सुनाई गई, आसमान से खाने उतारे गए, जमीन को फाड़ा गया, आसमान से हर तरह की नेमतें और बरकत, सिर्फ खुदाई मनवाई जाए, अल्लाह मनवाया जाए, अल्लाह के अहकामात मनवाए जाए। हत्ता के रिसालत माप पे आके दीन मुकम्मल हुआ, आखिरी नबी जमीन पे उतार दिया, विलायत अमीर अल मोमिनीन का ऐलान हो गया। लेकिन अभी तक खुदा ने गदीर में दीन के मुकम्मल होने की सनद दी थी, महफूज होने की सनद नहीं दी। ये बताया कि दीन मुकम्मल हो गया, लेकिन ये नहीं बताया था कि दीन महफूज हो गया। हजरत आदम जमीन पे उतरे, हक का पैगाम दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि अब तेरे दीन को कोई खतरा नहीं है। हजरत नूह आए, सफीना बनाया, ये नहीं कहा कि अब तेरे दीन को खतरा नहीं है। इब्राहिम ने नारी नमरूद को गुलजार किया, लेकिन ये नहीं बताया कि अब तेरे दीन को कोई खतरा नहीं है। हर एक नबी आके पैगाम देता रहा, लेकिन ये नहीं कह के गया अब तेरे दीन को कोई खतरा नहीं है। हत्ता के रिसालत माब आए, रिसालत माब ने हिजरत की, बदर, ओहद, खैबर, खंदक, ये तमाम मार्के हुए। रसूल ने कहा जहां तक हो सके तेरा दीन बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन दीन के महफूज होने की सनद नहीं दी। वल्लारे अजमत हुसैन इब्न अली 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन इब्न अली ने नुमाइंदा अंबिया बन के, वारस अंबिया बन के, खून रसूल बन के, जिगर गोशाए बतूल बन के, फरजंद अमीर अल मोमिनीन बन के 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इराक के शहर करबला के रेगिस्तान में हुसैन इब्न अली ने खुदा बंदे मुतआल की बारगाह में कहा, जो दीन तूने आदम से शुरू किया था और मेरे नाना सैयदुल मुरसलीन पे आके तूने मुकम्मल किया है, और मेरे बाबा अली की विलायत के साथ उसे मुकम्मल करके उसकी तकमील की सनद दी है, उस दीन में फिर भी यजीद जैसा फासिक पैदा हो गया, जिसने तेरे आदम का इनकार कर दिया, जिसने नबियों का इनकार कर दिया, जिसने कुरान का इनकार कर दिया। ऐ परवरदिगार आलम, अब हुसैन इब्न अली 10 मुहर्रम करबला में खड़ा है। मुझे साल नहीं चाहिए, लश्कर नहीं चाहिए, मुझे अजाब नहीं चाहिए, मुझे फरिश्तों की नुसरत नहीं चाहिए, मुझे इंसानियत का लश्कर नहीं चाहिए, लेकिन ये वादा मैं करता हूं कि 6 घंटे में फजर आशूर से लेके असर आशूर तक मैं तेरा दीन इतना महफूज कर दूंगा कि अब क्यामत तक के लिए तेरे दीन को कोई खतरा नहीं रहे, क्यामत तक के लिए तेरा दीन हमेशा के लिए महफूज हो। अब हुसैन इब्न अली ने दीन को महफूज कर दिया। जब दीन हुसैन इब्न अली के हाथों महफूज हो गया तो अब दीन का मुहाफिज हो गया हुसैन इब्न अली। जब दीन के मुहाफिज हुसैन इब्न अली हो गए, अब आइए चलते हैं खुदावंद मुतआल के कुरान की जानब। खुदा ने कहा फज़कुरूनी अज़कुर, तुमने मेरा जिक्र नहीं किया, अब मैं तुम्हारे जिक्र को बुलंद करूं। मेरा जिक्र अंबिया करते थे लेकिन इतना बुलंद नहीं कर सके, मेरा जिक्र रसूल करते थे लेकिन इतना आला नहीं कर सके, मेरा जिक्र हर एक रसूल, मुरसल, नबी, पैगंबर ने किया लेकिन इतना आला ना किया। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुमने मेरे जिक्र को इतना बुलंद कर दिया जितना मैं चाहता था। अब मेरा जिक्र मुकम्मल होने की इंतहा हो गई, अब मेरे ऊपर कर्ज है, अब मैं तेरे जिक्र को बुलंद रखूंगा, अब मैं जमाने को बताऊंगा
कोई था जिसने मेरे जिक्र को बुलंद किया था। अब ये जो पैगाम अज़ादारी है, ये जो मुहर्रम का चांद है, ये मुहर्रम का चांद किसी शिया की हुसैन से मोहब्बत की अलामत नहीं, किसी सुन्नी का हुसैन से इश्क नहीं है, किसी मुसलमान की आले मोहम्मद के साथ मोहब्बत नहीं है, ये परवरदिगार का वादा है। क्योंकि 10 मुहर्रम 61 हिजरी को हुसैन अपने वादे को पूरा कर चुके। अब क़यामत तक के लिए मजलिस होगी तो मशीयत परवरदिगार है, मातम होगा तो ये रज़ाए परवरदिगार है, नूहा पढ़ा जाएगा तो ये कर्ज़ परवरदिगार है। क्योंकि हुसैन ने जितना जिक्र बुलंद करना था कर दिया। अब क़यामत तक के लिए ये जिक्र मजलिस की सूरत में हो, नूहे की सूरत में हो, मरसिये की सूरत में हो, जिस भी सूरत में हो, इस जिक्र को अगर बुलंद किया जाएगा तो वो बुलंद बंदा नहीं कर रहा, वो बुलंद खुदा कर रहा है। वो खुदा उसको बुलंद इसलिए कर रहा है कि हुसैन ने उसके जिक्र को बुलंद कर दिया था। तो जब हुसैन ने जिक्र को बुलंद किया था तो अब खुदा उस जिक्र को बुलंद कर रहा है। तो अब अगर कोई अज़ादारी का दुश्मन होगा तो वो अज़ादारी का दुश्मन नहीं होगा, वो खुदा का दुश्मन होगा। अगर कोई मातम से इनकार करेगा तो वो मातम से इनकार नहीं करेगा, वो खुदा से इनकार करेगा। अगर कोई जंजीर जनी का इनकार करेगा तो खुदा की कसम वो इनकार जंजीर जनी का नहीं होगा, वो अल्लाह के उस वादे का इनकार होगा जो खुदा ने हुसैन इब्न अली के साथ किया। जियो किबला, नारे हैदरी, या अली 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 अली। मार्फत हुसैन इब्न अली क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्या हम उनकी याद सिर्फ और सिर्फ इसलिए मनाते हैं कि हम जिनका कलमा पढ़ते हैं ये उनके नवासे थे? आज की इस पहली नशिस्त में मैं मुसलमाना आलम को मुखातब करना चाहता हूं कि क्या हम हजरत इमाम हुसैन इब्न अली की याद इसलिए मनाते हैं कि वो रसूल के नवासे, वो अली के बेटे थे? नवासा रसूल होना ये हुसैन का मकाम, फरजंद अमीर अल मोमिनीन होना ये हुसैन का मकाम। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत जो थी वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हुसैन की जात है, बेशक जात हुसैन इब्न अली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बचपन है इमाम हुसैन का, मिंबर पे है रसूल, कायनात के रसूल मिंबर पे हैं और सहाबा की सफों को चीर के करीम करबला मस्जिद में दाखिल हो। जो ही मस्जिद में हुसैन इब्न अली दाखिल हो तो बचपन है हुसैन का, रिसालत माप की निगाह हुसैन पे पड़ी, इमाम हुसैन की निगाह मिंबर पे थी। करीम करबला चलते हुए आ रहे थे, या अहले सुन्नत किताबों ने भी इस वाक़े को नकल किया कि रिसालत माप ने मिंबर छोड़ा, मिंबर छोड़ के बाकायदा मिंबर से नीचे उतरे, सहाबा की सफों को चीरा, चीरते हुए वहां गए जहां हुसैन, इमाम हुसैन को अपने हाथों पे लिया, हाथों पे लेकर रसूल मिंबर पे आए, मिंबर पे आके इमाम हुसैन को अपने जानू पे बिठाया। अब जो शरीयत की बात कर रहे थे उस बात को वहीं पे रोक दिया, जो दीन की बात कर रहे थे उसे वहीं पे रोक दिया। इमाम हुसैन को मिंबर पे अपने जानू पे बिठा दिया, सहाबा की तरफ निगाह करके कहा, अय्युहन्नास फारफु हाज़ल हुसैन, ऐ लोगों पहचानो ये हुसैन। अब मेरा सवाल है, अहले सुन्नत बरादरान ने कसरत के साथ इस वाक़े को नकल किया। मैं सवाल करता हूं कि जब रसूल कह रहे थे पहचानो, तो वो जो सामने बैठे हुए थे वो उस दौर के लोग थे, वो सहाबा रसूल थे, उनमें से कौन नहीं जानता था कि ये नवासा रसूल? उनमें से कौन नहीं जानता था कि ये अली के बेटे? क्योंकि मैं मौजू के साथ मुत्तसिल होने लगा हूं। रिसालत माब ने उन्हें कहा कि अब तक तुम रिश्ते से हुसैन को पहचान रहे थे, अब तक तुम हुसैन का एहतराम कर रहे थे मेरा नवासा होने की वजह से, तुम इसे चूमते थे कि ये जिसका कलमा पढ़ते हैं ये उसका बेटा है, ये उसका नवासा है, ये उसका खून है, ये उसकी बेटी का बेटा है। फरमाया ज़हनों से साफ करो ये रिश्तेदारी की बुनियाद पे हुसैन की इज्जत, खत्म करो ज़हनों से ताल्लुक की वजह से हुसैन का एहतराम। अगर हुसैन का एहतराम इस वजह से कर रहे हो जिसका कलमा पढ़ते उसका बेटा है, तो आज के बाद एहतराम ना करना, फारफु हाज़ल हुसैन, पहचानो ये हुसैन है। ये नहीं कहा कि जानो ये हुसैन है, ये नहीं कहा कि मानो ये हुसैन है, कहा पहचानो ये हुसैन। जब कहा पहचानो ये हुसैन है तो हम सहाबा ने सर उठाए कि हमें क्या पहचाने, हम तो पहचानते हैं कि ये हुसैन है। फरमाया जद्दाहु फिल जन्ना, तुम इबादत करते हो जन्नत के लालच की वजह से, इसका दादा जन्नत का मालिक, जद्दतु फिल जन्ना, इसकी दादी जन्नत की मालिक, अबू हो फिल जन्ना, इसका बाप जन्नत का मालिक, उम्मा हो फिल जन्ना, इसकी माँ जन्नत की माँ।
अम्मताहु फिल जन्ना, इसकी फुप्पी जन्नत की बात है। अम्मताहु फिल जन्ना, ये कहने के बाद रिसालत इमाम ने फरमाया मुहिब्बुहु फिल जन्ना, इसके चाहने वाले जन्नती। व मुहिब्बु मुहिब्बुहु फिल जन्ना, इसके चाहने वालों के चाहने वाले भी जन्नत। सिर्फ तुम जन्नत के लालच में इबादत कर रहे हो तो हुसैन सिर्फ जन्नत इबादत कर रहे हो ना, नमाजें पढ़ रहे हो, रोजे रख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो कि जन्नत मिले, तो तुम रसूल के पीछे जन्नत के लालच में इबादत कर रहे हो। तो मैं तुम्हें कह रहा हूं, जिसने हुसैन से मोहब्बत की वो जन्नत, और सिर्फ मोहब्बत नहीं की, जिसने हुसैन के मुहिब से मोहब्बत की वो भी जन्नत। क्या बात, क्या बात। अब इस छोटे से वाक्य से एक नतीजा निकला कि वो लालच इंसानियत का जो इबादत की सूरत में जन्नत के लिए मौजूद था, रिसालत इमाम ने सहाबा के ज़हनों से वो सारा जन्नत का लालच निकाल के उसे हुसैन की मोहब्बत में बंद कर दिया। बेशक। अब शर्रत जन्नत कसरत इबादत नहीं, मोहब्बत हुसैन। सुभान अल्लाह। कसरत जन्नत, जन्नत की ख्वाहिश, कसरत रोजा नहीं, रोजे बहुत ज्यादा हो नहीं, कसरत इबादत शरत जन्नत नहीं, अतात हुसैन शर्त जन्नत। बेशक। मोहब्बत हुसैन शर्त जन्नत। मैंने दावा किया है तो मैं नहीं समझता कि मैं इस मौजू में सिर्फ दावा करूं और उसकी दलील ना दूं, मैं उसकी दलील देता हूं। अगर आप ये कहें कि मोहब्बत हुसैन शर्त जन्नत तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक शिया खतीब और एक शिया जाकर की बात थी, हम इसको कैसे माने कि मोहब्बत हुसैन जो है वो शर्त जन्नत है। तो मैं दलील बहुत वजनी देने लगा। हुर के पास नमाज थी, मोहब्बत हुसैन नहीं थी। हुर के पास रोजा था, मोहब्बत हुसैन नहीं। जब हुर सारी इबादत कर रहा था तो उन सारी इबादत में सिर्फ मोहब्बत हुसैन नहीं। तो हुर ने जितनी नमाजें, जितनी इबादत मोहब्बत हुसैन के बगैर की, वो कबूल नहीं। लेकिन जो ही शब आशूर उसने जहन में ख्याल आया कि मैं जिस दीन को इतनी देर का अपने ऊपर तारी करके बैठा हूं, अगर मैंने उसमें से ये मोहब्बत हुसैन निकाल दी तो पीछे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अब वो गया मोहब्बत हुसैन की खातिर। ये जो एक रात के लिए करबला रोक दी गई थी, इस एक रात के करबला में रोकने के लिए हुसैन ने क़यामत तक के लिए पैगाम दे दिया था कि हुसैन इब्न अली ने नमाजों की आवाजों में, क्योंकि पूरी रात नमाजों की आवाजें उस लश्कर में बेसी आ रही थी, उस लश्कर से भी तिलावत कुरान की आवाज आ रही थी, इमाम हुसैन ने उनमें से एक को निकाला और निकाल के उसे अपना बना के उसके लहू से करबला की रेत पे लिख दिया कि अगर इस्लाम जैसे आला मजहब से सिर्फ हुसैन निकाल दिया जाए तो पीछे सिवाय यजीदियत के रहता ही कुछ नहीं। दुश्मनान अहले बैत पर लानत बेशुमार, यजीद पर लानत बेशुमार। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। इसका मतलब है कि दीन सिर्फ और सिर्फ इबादत की कसरत का नाम नहीं, मोहब्बत हुसैन का। अब ने पहला जीना मुकम्मल किया कि दीन क्या है, मोहब्बत हुसैन। अगर मोहब्बत हुसैन के साथ इबादत है तो वो नमाज की महराज है। अगर किसी नमाजी के दिल में हुसैन की मोहब्बत है और फिर वो नमाजी है तो फिर वो नमाज मोमन की महराज है। जियो किबला जियो। अगर कोई रोजादार है और उसके पास मोहब्बत हुसैन है, फिर वो रोजा है जो उसके लिए अजर है। अगर कोई हाजी है और उसके दिल में मोहब्बत हुसैन है, फिर वो हज करेगा तो अब ये हज जो है वो कबूल, इस वजह से कि मोहब्बत हुसैन जरूरत दीन नहीं, शर्त दीन। क्या बात है, जियो किबला, क्या बात। मोहब्बत हुसैन शर्त है तमाम इबादत को मुकम्मल करने के। जैसे जब तक आपका वजू नहीं होगा आपकी नमाज नहीं। वजू शर्त है नमाज के लिए। नमाज मुकम्मल हुई, अब आपका वजू नहीं भी है तो आप अपने तमाम अफाल बजा लाएं, क्योंकि वजू सिर्फ और सिर्फ
آپ نے بجا لانا تھا نماز کے، شرط مشروط کے ساتھ جڑی تھی لیکن محدود وقت کے لیے، ایک معین وقت کے لیے. ذرا اس بات کو ڈیٹیل میں سمجھیے گا تاکہ ہمارا موضوع پورے عشرہ کا اس کی زمین تیار ہو سکے. وضو شرط تھا کس کی؟ نماز کی، لیکن تب تک شرط تھا جب تک وہ عمل ہو رہا تھا. بھوک شرط ہے، پیاسے رہنا شرط ہے روزے کی، لیکن کب تک؟ جب تک افطار کا وقت نہ ہو جائے. ایک محدود وقت ہے، اس کے لیے شرط. پیسہ ہونا شرط ہے کہ اب یہ حج کے لیے جائے گا. اب جب حج میں گیا احرام شرط، سر منڈوانا شرط، کنکر مارنا شرط، صفا و مروہ پہ دوڑنا شرط، عرفات میں رکنا شرط، مزدلفہ میں جانا شرط. لیکن یہ تمام شرائط کب تھی؟ جب تک حج تھا. اب آپ حج سے نکلے، اب آپ نے ان میں سے کوئی شرط لاگو نہیں. مصلی سے اترے، وضو والی شرط لاگو نہیں. افطار کا ٹائم ختم ہو گیا، روزے کی شرط لاگو نہیں. آپ نے مال پاک کر لیا، زکوٰۃ کی شرط لاگو نہیں. اس کا مطلب ہے یہ تمام شرطیں ہیں دین کے لیے، عبادات کے لیے، لیکن محدود وقت کے لیے. اب آج کے بعد امام حسین کو ان چھوٹی عبادتوں کے ساتھ کبھی موازنہ نہ کرنا. وضو شرط ہے نماز کا، بھوکا رہنا شرط ہے روزے کی، اور یہ محدود اور معین شرطیں ہیں. محبت حسین شرط ہے آپ کے شعور سے لے کے آپ کی آخری سانس تک. آپ نے دنیا میں آ کے آنکھ کھولی، ادھر شعور روشن ہوا، محبت حسین آپ پر واجب ہو گئی. اب آپ نے سانس بھی لینا ہے تو شرط ہے کہ حسین کی محبت ہو. آپ نے اٹھنا ہے، شرط ہے کہ حسین کی محبت ہو. آپ نے کھانا ہے، شرط ہے کہ حسین کی محبت ہو. آپ نے نماز پڑھنی ہے، شرط ہے کہ حسین کی محبت ہو. لہذا یہ تمام عبادتوں کی شرطیں محدود ہیں، محبت حسین لامحدود ہے. اس لیے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا، ماتا میتتن جاہلیہ، اور پھر تم مر گئے، تو نہ سمجھنا کہ تم مسلمان مرے ہو، بلکہ سمجھنا تم جاہل مر چکے. کیا بات ہے کہ نعرہ حیدری یا علی 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 علی. جیو قبلہ جیو. کیا بات ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں. دیکھیں محبت کیوں ہے؟ محبت شرط ہے. آپ نے احسان نہیں کیا حسین پہ. کیوں؟ جہاں سے بات شروع کی تھی میں وہیں پہ بات کو دوبارہ پھر لے کے آنے لگا ہوں کہ کسی نبی نے دین کے محفوظ ہونے کی سند نہیں دی تھی. حسین ابن علی نے محفوظ کر کے دے دیا اسے. فرمایا اب یہ محفوظ ہے، اب اسے کوئی خطرہ نہیں. جب امام حسین نے دین محفوظ کر دیا تو اب خدا نے کہا کہ اب میں تیرے ذکر کو بلند رکھوں گا. تو اب محبت حسین زندہ رکھنا یہ وعدہ پروردگار ہے. تو اب جب محرم کا چاند طلوع ہوگا تو اب جو حسین سے محبت کا اظہار کرے گا وہ اللہ کے وعدے کا اظہار کرے گا. بے شک. اب محبت حسین ہم پر واجب ہو چکی ہے. اب کوئی عمل محبت حسین کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کو میں اور زیادہ آسان لفظوں میں اگر کروں تو محبت حسین اصل میں اسلام سے محبت. بے شک. حسین سے محبت اصل میں دین سے محبت. یہی وجہ ہے کہ اجمیر شریف میں سوئے ہوئے فقیر نے کہا تھا دین است حسین، دین پناہ است حسین. دین بھی حسین ہے اور دین کی پناہ بھی حسین ہے. حقہ کی بنا لا الہ است حسین. اب یہاں پر کسی فتوے کی ضرورت نہیں پڑے گی. معین الدین نے کہا حقہ کی بنا لا الہ است حسین. حق یہ ہے کہ لا الہ بھی حسین ہے. بے شک. جب پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لا الہ تو توحید ہے، تو یہ لا الہ حسین کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا لا الہ حسین اس لیے ہے کہ توحید کی لا الہ میں انکار ہے کہ نہ کوئی سوائے اللہ کے.
اس نہیں کو جس نے بقا دی ہے وہ حسین ہے۔ آج کتنے خدا اور ہو جاتے، آج کتنے توحید کے دعوے دار اور ہو جاتے، لیکن اگر اب قیامت تک کے لیے کوئی توحید کا دعوے دار، کوئی اللہ ہونے کا دعویٰ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا تو حسین جیسا مسجود کہاں سے لے کے آئے گا؟ کیا بات! کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس کوئی ایسا حسین ہے جو مجھے سجدہ کرتا؟ دین محفوظ ہو گیا، محبت حسین شرط دین ہو گئی۔ اب یہ دین کی شرائط میں سے عزاداری رسم نہیں، عزاداری رواج نہیں، عزاداری امام حسین علیہ السلام کا غم منانا، یہ نہ سمجھیں کہ یہ رسم ہے، یہ رواج ہے جو ہر سال جیسے تہوار منائے جاتے ہیں ویسے تہوار ہے، جیسے ایونٹ کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے ویسا ایک ایونٹ ہے، نہیں، عزاداری کو سمجھیں۔ اگر آپ نے عزاداری کی روح کو سمجھنا ہے تو عزاداری سے ایک مہینہ پہلے خدا نے ذی الحج کا مہینہ رکھا، اس مہینے میں بھی پہلے 10 دن ہیں اور اس مہینے میں بھی پہلے 10 دن ہیں، وہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اسے ذی الحج کہا جاتا ہے، اسے محرم کہا جاتا ہے، اس میں بھی یکم سے لے کے 10 ذی الحج تک 10 دن ہے، اس میں یکم سے لے کے 10 محرم تک 10 دن ہے، اس میں بھی ایک نبی کے بیٹے کے دن ہے، اس میں بھی ایک نبی کے بیٹے کے دن ہے، اس میں بھی ایک کہانی ہے، اس میں بھی ایک کہانی ہے، اس میں بھی ایک عشق ہے، اس میں بھی ایک عشق ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، وہ خواب ہے، یہ تعبیر ہے۔ کیا بات ہے قبلہ، جیو جیو، کیا بات! صرف دیکھا گیا تھا، اس میں عملاً کر کے دکھایا۔ آج پوری دنیا میں مسلمان جب حضرت ابراہیم کے بیٹے کے دن آئے، ابھی پچھلا مہینہ گزرا، اس میں عید الاضحیٰ تھی۔ عید الاضحیٰ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم کی۔ ابراہیم کون تھے؟ اللہ کے نبی۔ کب آئے تھے؟ ہمارے رسول سے پہلے۔ تو ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ ابراہیم کون تھے؟ ہمارے نبی کی جد تھے۔ اچھا، اب میرا سوال ہے مسلمانوں سے جو پوری دنیا میں اس آج کی ہماری تقریر اور نشست اور مجلس کو سن رہے ہیں، کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے دن تھے، پھر مسلمانوں میں کوئی تنازع نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں، کسی مسلمان کے ہاں یہ نہیں تھا کہ یہ قربانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، ضروری ہے یا نہیں ضروری۔ کسی ایک، میں بہت لطیف نکتہ دینے لگا، کسی ایک بھی مولوی کی مجھے آواز اور فتویٰ ایسا نہیں ملا کہ جو پیسے آپ نے ابراہیم کے یاد میں جانور خریدنے ہیں وہ پیسے کسی غریب کو دیں۔ کسی نے نہیں کہا کہ یہ جو جانوروں کا خون بہانا ہے، انہی پیسوں میں سے کوئی بلڈ جو ہے وہ ارینج کر کے کسی مریض کو دے۔ کوئی ایک فتویٰ نہیں آیا کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے، اتنے زیادہ جانور قربان نہیں کرنے چاہیے، بلکہ بار بار مولویوں نے کہا بہتر سے بہتر جانور خریدو، مہنگے سے مہنگا جانور خریدو، ابراہیم کی یاد جتنی بہتر ہو سکے منواؤ، ابراہیم کی یاد میں جو ہو سکے وہ خرچ کرو۔ وہ کس کی یاد تھی؟ ابراہیم کی۔ یہ کس کی یاد ہے؟ رسول کے بیٹے کی۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کہ قیامت والے دن ہم نے جواب حضرت ابراہیم کو دینا ہے یا حضرت محمد کو دینا ہے؟ کیا بات ہے قبلہ جی۔ تو کیا قیامت والے رسول نہیں پوچھیں گے کہ جب ابراہیم کے بیٹے کے دن تھے تو پھر تو تمہیں کوئی دین خطرے میں نہیں تھا، پھر تو تمہیں کوئی فتویٰ، کوئی بحث شروع نہیں ہوئی، لیکن جو ہی حسین ابن علی کے دن آئے؟ تو جہاں تک میں نے اس کا ریسرچ کی، جہاں تک میری تحقیق پہنچی، ابراہیم سے محبت کا اظہار سب کرتے ہیں اور ابراہیم کے مخالف نمرود سے نفرت سارے کرتے ہیں، موسیٰ سے پیار کرتے ہیں، فرعون پہ لعنت کرتے ہیں، آدم کا تذکرہ کرتے ہیں، ابلیس پہ لعنت کرتے ہیں۔ یہاں حسین ابن علی سے محبت کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں لیکن یزید پہ لعنت کرنا مشکل تھا۔ یزید پہ لعنت بے شمار، ضرور بے شمار۔ اگر یزید پہ لعنت کریں گے تو صرف ایک یزید نہیں ہوگا، پھر ایک مکمل نظام کو للکارا جائے گا جو حسین ابن علی کے خلاف۔
क़याम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत सी वजूहात रखता है, लिहाजा खुदा ने ज़िलहज के महीने के साथ जोड़ के मुहर्रम का महीना रख दिया ताकि मुसलमानों के जहनों में कुर्बानी का फलसफा भी रहे और इश्क का म्यार भी रहे। मैं अक्सर अपनी मजालिस में कहा करता हूं कि जो एतराज़ात मुसलमान मुहर्रम में करते हैं उन तमाम के जवाब अल्लाह ज़िलहज के महीने में देते हैं। मुहर्रम के महीने में एतराज किया जाता है कि हम हाथ में बनाया हुआ लकड़ी का ताजिया क्यों चूमे, कपड़े का अलम क्यों चूमे। जो लकड़ी का ताजिया और कपड़े का अलम नहीं चूमते वो हज करने के लिए जाते हैं और हजर अस्वद को चूम के आते हैं। जो ये कहते हैं कि औरतें और मर्द इकट्ठे मजलिसों में कैसे जाते हैं, वो ज़िलहज के महीने में औरतें मर्द इकट्ठे तवाफ करते हुए देखे। सुभान अल्लाह। जो कहते हैं कि यजीद पे लानत नहीं करनी चाहिए, वो शैतान को कंकरियां मार गया। बेशुमार। जो ये कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन को मातम का कुछ नहीं है, कुरान पढ़ के बख्शना चाहिए, वो सफा और मरवा में दौड़ के आते। वो जादे कुरान से पूछें कि जब आप सफा और मरवा पे दौड़ते हैं तो इस दौड़ने की क्या फजीलत है, क्या इस दौड़ने से कोई फायदा इब्राहिम इस्माइल हाजरा को मिलता है। वो कहते हैं इसलिए वहां दौड़ा जाता है कि अगर हम यहां नहीं दौड़ेंगे तो ये वाकया जो बहुत 100 साल पहले हुआ था ये छुप जाएगा। लिहाजा खुदा ये चाहता है कि हर साल यहां पर दौड़ा जाए ताकि हाजरा की सुन्नत जिंदा रहे, हाजरा की याद जिंदा रहे। तो जो खुदा हाजरा की याद जिंदा कराने के लिए हर साल मुसलमानों को सफा और मरवा पे दौड़ाता है, वही खुदा चाहता है कि यकम से लेकर 10 मुहर्रम तक गलियों में या हुसैन की सदा आए ताकि इश्क हुसैन छुपने ना पाए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, दुश्मनाने अहले बैत पर लानत बेशुमार, जर्बे बेशुमार। वही खुदा चाहता है कि मोहब्बत हुसैन और इश्क हुसैन छुपे ना। तो मेरी मुसलमानाने आलम से ये गुजारिश है, मुहर्रम का चांद है, इंशाअल्लाह हर रोज आपके सामने मोहब्बत हुसैन, मार्फत हुसैन, इख्तियारात हुसैन, अज़ादारी की फजीलत, अज़ादारी की बरकतें, अज़ादारी का तकाजा और साहिबुल असर के दौर में आज की अज़ादारी की जिम्मेदारियां, इन तमाम मुख्तलिफ किस्म के मौज़ूआत को लेकर रोजाना इंशाअल्लाह ठीक 6 बजे इराक टाइम के मुताबिक, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे आपके सामने इंशाअल्लाह हाजिर हुआ जाएगा। और ये मजालस पूरी दुनिया में विलायत अली 313 के वसीले से आप तक पहुंचेंगी। अगर इन तमाम मजालस के मौज़ूआत के मुतअल्लिक़ा आपके पास कोई सवाल हो तो उन सवालात को इसी चैनल के एडमिन हज़रात जो हैं उन तक पहुंचाएं, तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी मुहर्रम की मजालस में उन तमाम सवालात के जवाबात आप तक पहुंचाए जा सकें। जो अज़ादारी पे सवालात उठते हैं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इख्तियारात में सवालात उठते हैं, हम उनके बेहतर से बेहतर और आसन से आसन अंदाज में और मुफस्सल अंदाज में आपके सामने अपनी कम इल्मी के एतराफ और जनाब सैयदा से मांगी खैरात पे एतमाद करते हुए जवाब पहुंचा सके। ये तमीदी मजलिस थी क्योंकि ये चांद रात की मजलिस है। मुहर्रम का चांद जब उफक पे तलू होता है और मैं इस वक्त खुशकिस्मती और सआदत के अरूज पे हूं कि मैं सरजमीन करबला से आपसे मुखातिब, और यहां भी मुहर्रम का चांद आज तलू होगा। मदीने के लोग कहते हैं कि हम मुहर्रम का चांद आसमान पे नहीं देखते थे, इमाम जाफर सादिक के घर से रोने की इतनी सदाएं आती थी, हमें पता चल जाता था कि मुहर्रम का चांद, मुहर्रम का चांद 61 हिजरी को बहन और भाई ने सफर में देखा। उसके बाद जब भी जिस महीने का चांद आया, भाई ने नेजे पे देखा, बहन ने बगैर चादर के देखा। मुहर्रम का चांद अपने घरों में, अपने वतन में सुकून से देखने वालों से मेरी गुजारिश, इस चांद को देखते हुए देखना कि जब ये चांद मदीना में फातिमा सुगरा ने देखा, इस चांद को मुस्लिम की बेटियों ने देखा, इस चांद को अली की बेटियों ने देखा। रस्ते में था हुसैन इब्न अली का काफिला, जब मुहर्रम का चांद तलू हुआ
मुहर्रम के चांद का तुलू होना था। इमाम हुसैन ने अपने मुर्तजिज को रोका, मुर्तजिज को रोक के हुसैन इब्न अली ने अपने काफिले को छोड़ा। चंद कदम के फासले पे जाके हुसैन का मुर्तजिज रुका। सरकार बाबुल हवाइज अबुल फजल अब्बास करीम करबला के घोड़े के पीछे आए। सवारी के पीछे हुसैन इब्न अली के अब्बास का आना था। या अब्बास के कानों में इमाम हुसैन की आहिस्ता से आवाज आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस आयत का सुनना था, बदन कांप गया जलालत इलाहिया का देख के। कहते हैं फरजंदे रसूल, ये आयत तो मौत की सूरत में पड़ी जाती है। इमाम हुसैन ने रोती हुई आंखों से चांद की तरफ देख के कहा, अब्बास इस चांद को देखिए। जब कहा अब्बास इस चांद को देखिए, अब्बास देख के कहा था, हुर्मत वाले महीने का चांद है, मुहर्रम का चांद है। ये वो महीना है जिसमें इस्लाम ने कहा है कि जंग बंद कर दी जाए। ये वो महीना है जिसकी हुर्मत का खुदा ने हुक्म दिया है। ये वो महीना है जिसके लिए आपका नाना कह के गया था, इस महीने में दुश्मन की दुश्मनी भुला दिया करो। हुसैन इब्न अली रो के कहते, अब्बास यही तो गुर्बत है। जिस महीने की हुर्मत के लिए खुदा ने हुक्म दिया था, उस महीने को मुसलमानों ने हुसैन की शहादत के लिए चुन लिया। इतना सुनना था। अभी अब्बास इब्न अली की आंखों में आंसू थे, या पीछे से गुलाम आया, आवाज आई, अब्बास मौला आपको शहजादी बुला रही है। मौला अब्बास का घोड़ा महमल सैयदा के करीब गया। जनाब सैयदा फातिह शाम शहजादी की आवाज आती है, अब्बास हुसैन कहाँ है? फरमाया शहजादी हुसैन यही है। कहती जल्दी से जाइए और हुसैन को कहिए कि जल्दी से मेरे महमल के करीब आए, मेरा दिल घबरा रहा है। फरमाया आकाजादी दिल घबरा रहा है तो नौकर हाजिर है। रो के कहती, जब से ये चांद तुलू हुआ है मुझे अपनी सवारी के साथ मेरी माँ के रोने की आवाज आ रही है, जो चीख मार मार के कह रही है, जैनब सफर मुकम्मल हो चुका। जैनब जो मदीने से आस लेके चली थी वो टूटने वाली। गुर्बत की हालत में देखा हुसैन इब्न अली ने ये मुहर्रम का चांद, ये मुहर्रम का चांद हुसैन की गुर्बत का पैगाम लेके तलू हो चुका। एक रात का सफर और 2 मुहर्रम का करबला का वरूद है हुसैन इब्न अली का। मुश्किल होता है शरीफों के लिए वतन छोड़ना, और फिर वो वतन जहां पर माँ की कब्र हो, जहां पर नाना की कब्र हो। लोग कहते हैं कि हुसैन इब्न अली जब मदीना छोड़ के आए तो हुसैन इब्न अली ने अगर चाहते तो मदीना में बहुत से लोग साथ जा सकते थे। रवायात कहती हैं सफर बांधने के बाद सामान हुसैन इब्न अली एक एक दरवाजे पे गए और दरवाजे पे दस्तक दे के कहा, मैं मोहम्मद का बेटा वतन छोड़ के जा रहा हूँ, मैं रसूल का बेटा वतन छोड़ के जा रहा हूँ। दरवाजे बंद होते रहे, हुसैन इब्न अली मदीना की गलियों से गुजरते रहे। दरवाजे बंद होते रहे, हुसैन इब्न अली मदीना की गलियों से गुजरते रहे। आखिर जब किसी मुसलमान का दरवाजा नहीं खुला, रोते हुए अब्बास के गले में बाहें डाल के हुसैन की आवाज आई, अब्बास एक ऐलान मदीने की गलियों में और कर दे कि हुसैन अकेला नहीं जा रहा, अली की बेटियां भी साथ जा रही हैं, रसूल सादियां भी साथ जा रही हैं। शायद कोई रसूल जादियों का हया करता हुआ पूछे, जिनका कदम कभी दिन की रोशनी में घर से बाहर नहीं आया, वो वतन छोड़ के क्यों जा रही हैं? जब किसी मुसलमान का दरवाजा नहीं खुला, जब किसी सहाबी का दरवाजा नहीं खुला, फिर रोते हुए हुसैन इब्न अली वहां आए जहां कब्र रसूल थी। रोजा रसूल पे आके खड़े हुए, कब्र मुस्तफा पे बैठ गए। फरजंद मुस्तफा अपने सर से अमामा उतारा, कब्र रसूल पे ऐसे बैठे जैसे लायक शागिर्द उस्ताद के सामने बैठता है। कब्र रसूल पे बैठ के इमाम हुसैन की पहली आवाज आई। हुसैन रो के कहते, नाना तेरा हुसैन वतन छोड़ के जा रहा है, नाना तेरा हुसैन मदीना छोड़ रहा है। कब्र रसूल से आवाज आई, हुसैन कहाँ जाओगे? आवाज दे के हुसैन कहते, नाना अब तेरा मदीना मेरे रहने के काबिल नहीं रहा। नाना आपके जाने के बाद शरीफों के घरों को आग लग गई। नाना आपके जाने के बाद शरीफों की बेटियां पहलू पे हाथ रख के चली गई। नाना आपके जाने के बाद शरीफों के जनाजों पे तीर चलते रहे। नाना तेरे जाने के बाद मदीने के लोगों ने हमें गरीब कर दिया, मेरे बाबा को मदीने के लोगों ने सलाम नहीं किया। नाना तेरे जाने के बाद मेरे बाबा को मदीना छोड़ के कूफा जाना पड़ा। नाना तेरे जाने के बाद मेरी माँ जख्मी होकर चली गई। नाना तेरे जाने के बाद मेरे हसन को मदीने में जहर मिल गई। नाना तेरे जाने के बाद मेरे हसन के जनाजे पे तीर लगे। नाना आपके जाने के बाद मुझे भाई को 2 कफन देने पड़े।
नाना आप पे जाने के बाद मुझे हसन को आपके पहलू से उठाना पड़ा। रोते हुए हुसैन ने कब्र मोहम्मद पे अपना चेहरा रख दिया। कब्र मोहम्मद को हुसैन के आंसुओं से भर दिया गया। रो के हुसैन इब्ने अली कहते हैं नाना बड़ा मुश्किल है तेरी कब्र छोड़ के जाना। नाना जब कभी उदास होता था तेरी कब्र पे आके बैठता था। नाना जब कभी बातें करनी होती थी मैं माँ की कब्र पे बैठता था। नाना अब मुझे ये कब्र नहीं मिलेगी। रो के हुसैन ने नाना की कब्र को ऐसे सीने से लगाया जैसे बच्चा माँ को सीने से लगाता है। रो के कहते नाना अब हर कोई आएगा तेरा हुसैन नहीं आएगा। नाना क़यामत तक के लिए तेरे ज़ाहिर आएंगे। नाना मदीने में तेरे ज़वार आएंगे। नाना नहीं आएगा तो तेरा लाल हुसैन नहीं आएगा। नाना मुझे वतन छोड़ना है। नाना मैंने दरवाजे बंद कर दिए हैं। रोते हुए रो के कहने लगे नाना बस एक ख्वाहिश का इजहार करने के लिए आया हूं, एक सिफारिश कबूल कर लेना। नाना मेरे जाने के बाद मैं अकेली बेटी मदीने छोड़ के जा रहा हूँ। नाना जब मेरी फातिमा सुगरा मन्नतों के चिराग जलाने के लिए आए, नाना 10 मुहर्रम तक मेरी फातिमा को ना बताना कि तेरा बाबा कहाँ गया है। मैं सुगरा को कह के जा रहा हूँ कि मैं अकबर की शादी पे तुझे बुलाऊंगा। नाना मेरी सुगरा तेरे हवाले, नाना अब्बास की माँ तेरे हवाले, नाना नानी उम्म सलमा तेरे हवाले, नाना बनी हाशम की औरतें तेरे हवाले। ये कह के कब्र मोहम्मद से उठे हुसैन रो के कहते नाना तेरा दीन बचाने के लिए जा रहा हूँ। आवाज आई हुसैन दीन कैसे बचेगा। फरमाया नाना मैं बदे एहराम तोड़ूंगा, हुसैन दीन नहीं बचेगा। नाना मैं करबला के जंगल में उतरूंगा, हुसैन दीन नहीं बचेगा। नाना मैं प्यासा रह जाऊंगा, हुसैन मेरा दीन नहीं बचेगा। नाना मेरी सकीना प्यासी होगी, हुसैन मेरा दीन नहीं बचेगा। कब्र मुस्तफा पे गिर के हुसैन कहते नाना फिर आप ना घबराइए, नाना मैं अकबर का जिगर दूंगा, हुसैन मेरा दीन नहीं बचता। नाना मैं कासम की लाश के टुकड़े दूंगा, हुसैन मेरा दीन फिर भी नहीं बचता। नाना मैं अब्बास के बाजू दूंगा, हुसैन मेरा दीन फिर भी नहीं बचेगा। नाना मैं असगर का सूखा हुआ हलक दूंगा, हुसैन मेरा दीन फिर भी नहीं बचेगा। नाना मैं ओनो मोहम्मद के लाशें दूंगा, हुसैन मेरा दीन फिर भी नहीं बचेगा। कब्र मुस्तफा पे मुंह के बल गिरे हुसैन रो के कहते फिर हुसैन का वादा है मैं अपना सर दूंगा। आवाज आई तेरा सर दे के भी मेरा दीन नहीं बचता। रो के कहते फिर तेरे दीन को क्या चाहिए। मैंने कुनबा दे दिया, मैंने घर दे दिया, मैंने बेटे दे दिए, अब आप बोलिए आपके दीन को क्या चाहिए। अभी कब्र रसूल से आवाज नहीं आई या सैयदों की हवेली से एक मस्तूर की आवाज गूंजी। आवाज आई हुसैन वापस आ जाइए, मुझे खबर है दीन को किस चीज की जरूरत है। हुसैन रो के कहते नाना क्या चाहिए। अली की बेटी की आवाज आई वादा कर नाने से जैनब अपने सर की रिदा देगी, जैनब अपने सर की चादर देगी। चादर का नाम आना था, करीब करबला का बदन कांपा। रो के कहते हैं नाना तेरे दीन को क्या मेरी बहन की रिदा चाहिए, तेरे दीन को क्या जैनब की बेरिदाई चाहिए। मुस्तफा से आवाज आई विलायत बचेगी तो अली की बेटी के खुतबे की वजह से, रिसालत बचेगी तो आलिया के खुतबों की वजह से। हुसैन रो के कहता कैसे लेके जाऊंगा घर से बाहर, वो तो जिंदगी में बाबा के सामने कभी नहीं आई थी, उसने तो जिंदगी में 18 भाइयों को कभी नहीं देखा, उसके भाई तो उसके कद से वाकिफ नहीं है। इतना कहना था यह शहजादी की घर से आवाज आई हुसैन नारो करबला जाने तू जाने, शाम जाने तेरी बहनें जाने। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मौला हमारा पुरसा अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, ये आंसू हमारी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। शहजादी कुनैन इस मातम इस पुरसे का हमें बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। सलाम अलैकुम या अली।